कुछ लोग, कुछ जातियां अगर डेवलप कर जाएंगी, देश डेवलप नहीं होगा, देश पीछे छूट जाएगा। क्योंकि देश के अंदर अभी भी 88% SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के लोग हैं। और उन 88% में भी, यानी पूरे देश की पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे, जितने देश के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, सरकारी ठेके मिलते हैं उनको। और आपको तो शायद, बहुत लोगों को शायद ना पता हो, मैंने गवर्नमेंट में रह के देख लिया, जो टेंडर बनता है, टेंडर की जो डिस्क्रिप्शंस बनती हैं, उसमें जानबूझ के ऐसी टर्म कंडीशन डाल दी जाती है कि नया आदमी आ ही ना पाए। कभी नया आदमी ठेकेदारी में आ ही नहीं सकता। हमारे पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर मनुस्मृति में धार्मिक बंदिश लगाई गई, जिसकी वजह से भारत के अछूत और शूद्र और महिलाएं वो संपत्ति से, व्यापार से और पढ़ने से वंचित रहे। तो जब ये प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, तो कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? According to the Agricultural Census 2015 and 16, the majority of Dalits are landless and only 9% of Dalits operate on agricultural land. Around 80% of the 1571.4 lakh hectares of agricultural land is owned by upper caste and other dominant caste groups. The Wealth Inequality, Class and Caste in India report for 1961 to 2012 reveals that the Brahmin community alone monopolizes 48% of the national income, which is above the national average income, while other upper caste communities secure 45%. In contrast, Dalit, Adivasi and OBC together earn only rupees 113.22, far less than the national household income average. The socio-economic and caste census 2011 indicates that only 4% of SC/ST families have a member in government jobs. The lack of education, customary landlessness, poverty, absence of socio-cultural capital, family networks, along with traditional monopoly of upper caste on the economy and employment, force Dalits to migrate to cities and become cheap labor in the urban informal market. Moreover, the data shows the unwillingness of both central and state governments to improve the condition of scheduled caste communities. Backlog reserved vacancies in various government departments are widespread and have somehow institutionalized the exclusion of Dalits from mainstream socio-economic life. Union ministries, their departments, autonomous bodies, institutions of national importance, universities and affiliated colleges all have backlog reserved vacancies. Government data reveals that the number of unfilled posts in the scheduled caste or scheduled tribe reserved category in central ministries has increased substantially over the years. As per the data from the Department of Personnel and Training, the backlog vacancies in SC and ST categories were 8,223 and 6,955 in the year 2016, and it increased to 14,366 and 12,612 in the year 2019. The data also discloses that more than 50% of the posts in the SC/ST category were lying vacant in the year 2019. The data on backlog vacancies indicates that in the SC category there were 13,979 filled up positions and 14,000 unfilled out of a total of 28,345 posts. As of January 1st, 2021, 9 ministries and departments had 82,022 vacancies reserved for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. Out of these, total vacancies 19,971 were reserved for the SCs, 22,700 for the STs and 29,200 for the OBCs. Parliament was informed that of the 82,000 vacancies, only 34,000 seats or 42% of the vacant seats were filled. Moreover, the economic reform process in India, which began formally from 1991 onwards and manifested itself mainly in the form of liberalization, privatization and globalization, has on the whole resulted in the contraction of the public sector and ascendancy of the private sector. This has begun to dismantle the limited protection being granted to the SCs in the sphere of employment. Privatization has drastically narrowed down Dalits' access to basic means of sustenance and development, such as education, employment, and healthcare facilities. The state's pursuit of privatization of public sector units
industries and institutions, and the entry of MNCs without a proper policy of reservation in the private sectors has not only reduced the scope of reservation policy but has also rendered lakhs of Dalits and other marginalized sections unemployed. At the political front, at the regional and national at the political front, we have witnessed the decline of scheduled caste-led parties both at the regional and national levels. The elected representatives of mainstream political parties have hardly shown any willingness to raise the issue of SC communities in the recent past. Moreover, it would not be an exaggeration to say that the existing political reservation has almost no effect on the condition of Dalits and merely helps ruling caste political parties increase their tally in electoral competition. Surprisingly, even in cases of the most heinous crimes against Dalits, the elected representatives stand in favor of their representative political parties rather than standing with the community. The silent elected representatives, acute poverty among Dalits, complete socio-political impunity to oppressor castes, increasing caste atrocities on Dalits, government unwillingness towards the upliftment of the community, lack of institutional support in securing justice, and no radical welfare measures in the open market economy have pushed Dalits into a complete situation of statelessness. In this context, we, the All India Independent Scheduled Caste Association, AISCA, believe that creating an autonomous movement for Dalits at the national level is the need of the hour. We appeal and firmly believe in fighting for our human rights. Looking at the present situation, we demand reservation policy should be extended to the private sector, both in employment and education. The government should fulfill backlog vacancies immediately, enact comprehensive laws on reservations to guarantee population proportionate inclusion of the SCs in all government departments and institutions. To protect Dalits from caste atrocities, as Baba Saheb Ambedkar suggested, the government should build separate settlements for Dalits as away from dominant castes with their own means of livelihood, particularly land. The government should support the Dalit community in building its autonomous educational institutions and economic institutions. Thank you all for giving your time. So now I invite Rajendra Pal Gautam sir on the stage. Sir, please come. And I invite Ritu Singh, our Central Committee member, to come and welcome Rajendra Pal sir. हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो ये है कि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से जल जंगल जमीन लेके पैदा नहीं हुआ। कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं, हम उसके मालिक हम क्यों नहीं हैं, हमारा हिस्सा कहाँ गया, किसने हमारा हिस्सा खाया। अगर हम उसकी विवेचना करें कि हम उसके मालिक क्यों नहीं बन पाए, तो उसका जवाब मनुस्मृति में मिलता है। हमारे पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर मनुस्मृति में धार्मिक बंदिश लगाई गई, जिसकी वजह से भारत के अछूत और शूद्र और महिलाएं वो संपत्ति से, व्यापार से और पढ़ने से वंचित रहे। तो जब ये प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, तो कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। अगर हमें भी ये धार्मिक बंदिश ना लगी होती, हम भी व्यापार, हमारे लोग भी व्यापार कर रहे होते, हमारे लोग भी पढ़ाई किए होते, हमारे लोग भी प्रॉपर्टीज़ के मालिक बने होते, तो आज हम हर क्षेत्र में आगे मिलते। लेकिन मनुस्मृति में लगी धार्मिक बंदिश की वजह से हम संपत्ति के मालिक नहीं बन पाए, प्रॉपर्टीज़ के मालिक नहीं बन पाए, हम लोग व्यापारी नहीं बन पाए। इसीलिए हम बड़े बड़े कारखाने, मिल, फैक्ट्रियाँ, उनके मालिक नहीं बन पाए, कॉरपोरेट नहीं बन पाए। अब सवाल यह है कि सारे संसाधन तो पहले हजारों साल से कुछ ही लोगों के कब्जे में रहे। एक पर्टिकुलर वर्ग ही पूरे देश के व्यापार पे काबिज रहा, एक पर्टिकुलर वर्ग का ही पढ़ने पढ़ाने पे कब्जा रहा। तो हमारा तो फिर हम लोग इन क्षेत्रों में आगे कहाँ से आते। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर अगर बात शुरू की जाए तो इसमें एक तो लॉजिक ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जजमेंट है, और उस जजमेंट से पहले हमें अपने बाबा साहेब के बनाए संविधान का आर्टिकल 37-38 पढ़ना चाहिए,
जिसमें खुद बाबा साहेब ने कहा है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को सभी लोगों में समान रूप से वितरण करें। क्या वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का सभी वर्गों में समान रूप से वितरण हुआ? नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी थी? दोषी कौन है? तो एक तो पहला कारण यह है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा तर्क यह है, अगर हम कहीं बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन के अंदर जो उस कंपार्टमेंट के अंदर आपके अगल बगल और सामने जो लोग बैठे होते हैं, अगर लंबा सफर है तो कुछ ही देर में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जब आप अपना नाम बताते तो वो पूछते पूरा नाम क्या है। पूरा नाम पूछने का मतलब वो आपकी जाति पूछ रहा है। और जैसे आप ये कहेंगे बस और कुछ नहीं है, खाली राजेंद्र कुमार है, वो अंदाजा लगा लेता है कौन है और उसके चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं। दूसरा ये कारण है कि आपके नाम की वजह से प्राइवेट सेक्टर में आप काबिल होने के बावजूद इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके नाम से पता लग जाएगा आप कौन है, तो आपका सिलेक्शन 90% 95% तो होने वाला नहीं है। तीसरा कारण यह सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट है, जो सरकार से जमीन लेके जिन लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले हैं, स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन उसने ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी को दिया है। तो देश के जितने इकोनॉमिक जोन हैं बने हैं, सेस जो बना है, उसमें जो जमीनें एक्वायर किसानों की करके और वहां उनको सस्ते दाम पे बड़े बड़े कॉरपोरेट को दी गई है, इंडस्ट्रीज बन गई वहां। अब इंडस्ट्रीज बन गई सस्ते दाम पे सरकार से जमीन लेके, तो जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वहां लागू होता है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी 25% ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मुफ्त में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वही तर्क यहां भी लागू होता है। आपको जमीनें मिली हैं, गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, कोई ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने ये कॉरपोरेट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सस्ते दर पे जमीनें ना दी हों। तो जब सस्ते दर पे आपको जमीनें मिली, एक तरफ तो आपको जमीनें सरकार के द्वारा सरकारी मदद से सस्ते दर पे मिल गई, और मिलने के बाद जो इंडस्ट्री आपने खड़ी की, उस इंडस्ट्री के लिए सरकारी मदद से बैंकों से आपने लोन लिया। बैंकों के अंदर पैसा हमारा सबका है, जमीन सरकार से ले ली, पैसा हम सबका खर्च हुआ, देश की जनता का खर्च हुआ, इंडस्ट्री के मालिक आप बन गए। तो जब आप सरकार की मदद ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन लेकर इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, तो यह भी एक मजबूत तर्क है, आपको उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर भारत को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, कुछ लोग, कुछ जातियां अगर डेवलप कर जाएंगी, देश डेवलप नहीं होगा, देश पीछे छूट जाएगा। क्योंकि देश के अंदर अभी भी 88% SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के लोग हैं, और उन 88% में भी, यानी पूरे देश की पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे तो 80% गरीब है। देश की सरकारों ने साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हायर एजुकेशन में SC ST की अगर बात करूं तो 99%, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप डाटा चेक कर सकते हैं, आप तो सरकारी डाटा से पढ़ रहे थे, भी मैं बिना डाटा के बता रहा हूं आपको। देश में लगभग 4.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के। अगर पूरे इंडिया का अलग अलग स्टेट का और सेंटर का स्टडी कर लीजिए, मैं तो मंत्री रहा हूं तो मुझे मालूम है, कोई विभाग चल रहा है 22% पे, कोई विभाग चल रहा है 32% स्टाफ पे, कोई चल रहा है 25% स्टाफ पे, कोई चल रहा है 40% स्टाफ पे, कोई चल रहा है 45% स्टाफ पे। हाईएस्ट जो है ना 62% एक विभाग में कर्मचारी है। जो हाईएस्ट जहां भर्ती हो चुकी है वहां पे भी 38% पोस्ट खाली हैं। यानी अगर इसकी एवरेज भी निकाले तो 50% सीट तो खाली है। यानी 4.5 करोड़ में से 2.25 करोड़ केवल सरकारी नौकरी में लोग हैं पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिला के। 2.25 करोड़ में SC ST की जनसंख्या ही अपना 45 करोड़ है। 2.25 करोड़ में उनकी रिजर्वेशन लगा लो, 22.5% कितना हो गया, 45 और कुछ और लगा लो।
47-48%, वो 47-48 लाख लोग केवल सरकारी नौकरी में आ सकते हैं। 45 करोड़ की जनसंख्या में से 47-48 लाख लोग सरकारी नौकरी में आ भी जाएं, तब भी 44 करोड़ और लगभग 55 लाख बेरोजगार रह जाएंगे। अगर मैं दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज की DTU की बात करूं तो उसमें एक साल की फीस, केवल एक साल की केवल फीस 2.5 लाख रुपया है। NSUT की 2.5 लाख रुपया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका 2.5 लाख से भी ऊपर है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा, किताबों खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और जोड़ लीजिए। यानी एक डिग्री करने के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री आपको करनी है, आपको बच्चे को तो कम से कम चाहिए 15 लाख। लॉ की डिग्री करनी है तो चाहिए 20 लाख। और अगर IIM करना है, IIM से MBA करना है तो आपको चाहिए 50 लाख। और देश में SC ST के 99% लोग, OBC के 95% लोग और माइनॉरिटीज के भी लगभग 95% लोग ऐसे जो जिनके माँ बाप की पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ ली जाए तो हर महीने पूरे देश का डाटा अगर आप देखेंगे तो 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच है। तो जिनके पूरे परिवार की इनकम 3,000 रुपये से 20,000 के बीच है, क्या उनके बच्चे इतनी बड़ी डिग्री लेने के लिए खर्चा उठा सकते हैं? उनके माँ बाप क्या? एक तरीके से सरकारों ने साजिश करके पढ़ाई छीन ली और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया, नौकरियां सब चली गई, नौकरियां भी खत्म कर दी और ऊपर से सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो भारत का वो समाज जो लगभग 88% है, जो पिछड़ गया है, वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब केवल वो समाज नहीं पिछड़ेगा बल्कि पूरा देश पिछड़ जाएगा। तो पूरे देश को अगर तरक्की करनी है तो पूरे देश में रहने वाले सभी जाति वर्ग के लोगों को लेकर साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सरकारों की जिम्मेदारी है और अफर्मेटिव एक्शन हुए तो कुछ लोग आगे निकल के आए। तो देश को अगर तरक्की करनी है तो मैं समझता हूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग लॉजिक है उसके पीछे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो जितने देश के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, सरकारी ठेके मिलते हैं उनको। और आपको तो शायद बहुत लोगों को शायद ना पता हो, मैंने गवर्नमेंट में रह के देख लिया, जो टेंडर बनता है, टेंडर की जो डिस्क्रिप्शंस बनती हैं उसमें जानबूझ के ऐसी टर्म कंडीशन डाल दी जाती है कि नया आदमी आ ही ना पाए। कभी नया आदमी ठेकेदारी में आ ही नहीं सकता। उसमें पहले एक सीमा डाल देते हैं कि कम से कम उसका 1 साल का टर्नओवर 50 लाख हो। अब जो न्यू कमर नया काम शुरू करने वाला है 50 लाख का कहां से दिखाएगा कि उसने 50 लाख का 1 साल का टर्नओवर है? तो वो तो डे वन ही बाहर हो गया, अप्लाई नहीं कर सकता। यानी सरकारी स्तर पे साजिश चल रही है कि कुछ ही लोग को बढ़ाना है। तो जब कुछ ही लोग को बढ़ाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो हमारे तो सब लोग पिछड़ जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूं स्ट्रांगली, मैं इस मुद्दे को सपोर्ट करता हूं और 25 दिसंबर को 1 बजे जंतर मंतर पे भी स्ट्रांगली हम इस बात को रखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। बाकी हमारे और विद्वान साथी हैं वो रखेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भारत।